चलिए briefly introduce yourself, Anjali. So now, my name is Anjali Dahlan. I come from Khagaria, Bihar, with English as an honor subject. I am blessed with a younger brother who is currently handling my father's business, and I am also supporting him. I am an enthusiastic and a determined girl. Okay. Acha, your hobby is you told cooking, correct? Yes, yes, sir. So what do you like to cook? Sir, especially parathas. Okay, paratha. Acha, which type of paratha? There are different type of parathas there. So Yes. any specific paratha you would like to cook or any type of paratha? Sir, any type of means it is like aloo paratha or paneer paratha. Okay. Acha, can you tell me the best cook chef of this country? Can you tell me any two, three names who is the best chef, recognize the best chef of our country? Chef of our country. Mm-hmm. Sir, actually, I don't recall this time. Mm-hmm. I will go to it. I don't recall this time, sir. It's slipping from my mind. Shit, sir, I don't recall this time. Okay. Acha, can you tell me why Western food and Chinese food are getting more popular compared to Indian food across the India? Can you tell me what can be the reason? For Western food, Western food and Chinese food is getting a more I popular, think, na? sir, because, yes, sir, yes, sir. So what is the reason behind it? Sir, I think because tourism, sir, tourism are spreading across the country. I think this is one of the foremost reason. Next, I think because of our children see different social medias and they like to eat junk food, especially this is the foremost reason. The Indian foods are why not getting popular? Indian foods are also very tasty, very good. But why, every corner, nook and corner of this country, you will find momos and Maggi, chow mein, but you will not find our traditional food. No? Like you belong to Bihar, there is a very famous regional foods Yes, also sir. there. So same like UP, same in Rajasthan, Yes, sir. different food. So what is the reason? Can you tell me a specific reason behind it? Sir, I don't think so. Means भी मेरे को इसका जवाब नहीं समझ में आ रहा. Okay, कोई नहीं. अच्छा, you belong to Khagaria, okay? So who is the member of parliament of Khagaria? Yes, sir. Who is the member of parliament of Khagaria? Sir, I don't have many knowledge of politics. It is very big. Okay, and there is one very famous river passes through from your Khagaria. Can you tell me the name? Yes, sir, Buri Gandak. It is. Okay, Buri Garnik, correct. Tell me, what is your Yes, sir. first choice of bank? Like there are number of banks. Now, what is your first choice? Suppose you get through getting. So it is in- Central Bank. Okay, Central Bank. Why Central Bank? Sir, actually, currently my business account is with Central Bank, and I am enjoying that services very much. So I want to be a part of it. That Okay. job fascinates me so much. So I want to be part of that bank. Okay, but there are a lot of banks, bigger banks also there, like PNB, Bank of Baroda, who are a more bigger bank than your central bank, and there are more opportunities there. So why you chose Central Bank of India? Sir, if we see its past history, their services are increasing day by day, and their performance is increasing. मीन्स वो अच्छा हो रहा है उनका परफॉर्मेंस, और मैंने उनकी नेट प्रॉफिट भी देखी थी, तो वो बहुत उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रही है. मीन्स दे आर रेगुलरली वर्किंग ऑन देयर परफॉर्मेंस. क्या है उनका अभी प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का? 714 करोड़. 714 crore. Okay. And what is your net NPA of Yes, sir. your bank, Central Bank? I mean. Sir, net NPA, I don't know. Okay. Actually, I don't get it in Google there. Okay. Acha, what do you understand by nationalization of bank? What do you understand by this term, nationalization? Can you define it? Yes, sir. Means banks are regulated by the Banking Act. That is the nationalization of banks. All banks are coming together, and they are
regular one act, that is banking act. Okay. Acha, what is your logo of your Central Bank of India? Can you tell me what is your logo, tagline? Yes, tagline, build a better life around us, and one logo is it is of red color and blue color. Blue color shows us trustworthiness, and red color shows us the means it is better for people, means it is not profit oriented, it work for people. Oh, okay, okay, okay. Acha, can you define the NPA? What do you understand by NPA? Yes, sir, definitely. And NPA, sir, can I speak in Hindi? हाँ, श्योर Actually, I श्योर। don't आप get the एनपीए proper बताइए, क्या होता है एनपीए, क्या होता है? सर मीन्स अगर किसी कस्टमर ने कोई लोन लिया है और वो उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो अगर वो पे नहीं कर पाता है 90 डेज तक, देन इट इज कंसिडर्ड एज एनपीए। ओके, अभी ग्रॉस एनपीए कितना चल रहा है? सर आई डोंट नो। अच्छा ना, आपने पढ़ा होगा कि अभी एनपीए जो है वह काफी कम हो रहा है, ये 10 इयर्स का लो है। आपको बता दूं मैं, 3.9% है अप्रोक्सीमेट एनपीए। तो ये एनपीए कम क्यों हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री का? कुछ आप बता सकते हैं क्या कारण है इसके पीछे? क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है? Yes, sir. Actually, first is the SARFAESI Act, which is regulated by the government, which is introduced by the government, and second is the setup of NARCL company, which are taking bad loans from the company, and they are trying to recover it. And the third one is means there are rules, means banks have to go through that rules before giving loans to any customer. There is strict by bank. ओके। I think this we could. तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट से आप क्या समझती हैं? ये टर्म सुना है कभी, डिसइन्वेस्टमेंट? Yes, sir. Means government convert public sector into private sector. Okay, then what is nationalization? That is what you were telling. It's like a definition of nationalization. So nationalization, it is done by the government, and in which or means any companies or any institution have to follow with government rules. But when we say disinvestment, it comes from the means ये government से फिर बाहर चला जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी बजट आया है, तो बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना रखा गया है 2024-25 के लिए? 50,000 करोड़ सर। ओके, 50,000 करोड़। ओके, अच्छा, बजट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, आप बता सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नहीं, ये तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, लेकिन उसमें काफी डिपार्टमेंट्स है ना, तो कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है इसको, पता है? तो कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है? नो सर, आई डोंट नो दिस टाइम, बट श्योरली आई विल फिगर इट आउट। ओके, अच्छा, एसएलआर क्या होता है? SLR, that balance which bank has to reserve in a liquid form. Yeah, that average balance which a bank should be bank must reserve in liquid form, like gold, cash. ओके, ओके। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक? NBFC and bank. Sir, in bank. Deposits are insured, but in NFC, deposits are insured. This is the first differentiate. Second one is that in banks we have allowed term deposits, but in NBFC we are not allowed term deposits or demand deposits. ओके, ओके। अच्छा, व्हाट इज रूरल रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी? आरआरबी क्या होता है? RRB, sir, they are the banks which are generally regulated in regional rural area. Means they are for these rural, they are rural oriented. हाँ, कब वो एस्टेब्लिश हुआ था, और उसमें गवर्नमेंट का क्या क्या कितना शेयर होता है, स्ट्रक्चर कितना कितना होता है, बता सकती हैं? Yes sir, government share I think 75%. सेटअप कब हुआ था सर, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ओके, गवर्नमेंट शेयर आपने बताया 75%। अच्छा, ये बताइए प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? Yes, priority sector lending. Banks have to give their loans to some private sector. No, sorry sir, I'm extremely sorry. Priority sector lending in which banks have to, sir, I will speak in Hindi. I think I will not able to explain in English. बोलिए बिल्कुल। मीन्स बैंक्स को कुछ दे दिए जाते हैं कि आपको इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेंड करना है, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, इन सबको लेंड करना है। आपका लोन्स जो होना चाहिए उनके कुछ मतलब फिक्स कर दिए जाते हैं परसेंटेज। कितने परसेंट फिक्स किए जाते हैं शेड्यूल बैंक के लिए, आरआरबी के लिए वगैरह के लिए? सर
I don't recall this time. अच्छा अच्छा, ये बताइए आप कि क्या कहते हैं पेमेंट बैंक क्या होता है, सुना है आपने पेमेंट बैंक? Yes, sir. Payment bank is a type of niche bank. They are also means the maximum amount we can deposit in this bank is rupees 2 lakh. मिनिमम कितना, फिर से रिपीट करिए। Rupees 2 lakhs. ओके, तो इसमें पेमेंट बैंक में क्या वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग अप्लाई होता है, ये क्राइटेरिया? Sir, I don't know about this. ओके ओके। अच्छा, आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है करेक्ट? ग्रेजुएशन आपने Yes, sir. इंग्लिश Yes, ऑनर्स sir. आपने आपने किया है। तो एक बहुत फेमस राइटर हैं, पोएट Yes. हैं, विलियम शेक्सपियर, तो उनका कुछ आपने Yes, रचना sir. बता सकते हैं? कुछ उनका लिखा हुआ बुक का नाम Yes, या sir. फिर ड्रामा? Yes, sir. Hamlet, Othello, Measure for Measure, Macbeth. तो कोई भी आपने पढ़ा है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर से, तो कोई आपका फेवरेट है, कोई इसमें से आपने पढ़ा है कोई भी ड्रामा या नॉवेल? Yes, sir. I have gone through Macbeth and Hamlet both. ओके। अच्छा, एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड की इनके नोवेल पे बेस्ड, आपको पता है क्या नाम है उस मूवी का? No, no, sir. I don't know. ओमकारा नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो ओथेलो पे बेस्ड बना है। अच्छा, आजकल स्टार्टअप आपने नाम सुनते होंगे, स्टार्टअप, ठीक है, क्या होता है स्टार्टअप? Means small enterprises. हाँ हाँ, Yes, कोई डेफिनेशन है? मीन्स उनका मतलब लिमिट है इतने करोड़ तक, अगर वो हैं तो दैट्स आर दे आर ग्रोइंग स्टार्टअप्स, या उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। क्या होता है यूनिकॉर्न, क्या होता है, कोई क्राइटेरिया है यूनिकॉर्न का? यस सर, उनके टर्नओवर के हिसाब से उनको डिस्क्राइब किया गया, क्राइटेरिया है उनका। कितना टर्नओवर? के कितना टर्नओवर? आई थिंक 2 crore सर, दे आर कंसिडर्ड एज यूनिकॉर्न्स। ओके, कोई यूनिकॉर्न का नाम बता सकते हैं आप, कोई यूनिकॉर्न कंपनी जो रिसेंटली बना हो, चाहे पहले भी बना हो, जो इन लास्ट 1 to 2 years में, कोई नाम आपके दिमाग में आ रहा है? नो सर, दिस टाइम आई डोंट रिकॉल इट। ओके। अच्छा, बिहार अभी क्यों न्यूज में था, कुछ वहाँ घटना घटी है क्या, वहाँ पे न्यूज में क्यों था वो? सर आई थिंक रिसेंटली बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी वापस से बने हैं, तो आई थिंक इसको लेके वो न्यूज में काफी रहा है। कि कौन सा टर्म है इनका, कितने बार इसने शपथ ली, उन्होंने लिया है, ये कौन सा टर्म था इनका? 9th टर्म है उनका ये। तो क्या सोचती है इसके बारे में, इस तरह से जो है वह सत्ता परिवर्तन करना आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये सही है? आई थिंक अगर वो बिहार के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो डिपेंड है कि वो उन्होंने अच्छा किया है बिहार तरक्की उन्होंने दिखाई, तो वो अगर गेम बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है। ओके। अच्छा, कोई इंस्पिरेशन है आपका बैंकिंग इंडस्ट्री से, जैसे आपने बैंक में ज्वाइन करना चाहती हैं, तो कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई आपको कोई इंस्पायर किया कि मैं मतलब क्यों आप बैंक में आना चाहती हैं, कोई है रोल मॉडल बैंकिंग इंडस्ट्री से? Sir, actually my father always wanted to me to join banking sector. He thinks that I am perfect for a bank job. वाई? वो क्यों सोचते हैं कि आप मतलब क्या ऐसा क्या है, मतलब आप क्या सोचती हैं कि आप में ऐसा क्या है कि आपको चुनना चाहिए, आपको सेलेक्ट करना चाहिए? So actually my patience level is very good and my calmness is also there. The other criteria, if I think of me, team management skill is very good. I always try to collaborate each other person to have a good decision. तो कोई रोल मॉडल है आपका बैंकिंग इंडस्ट्री में? जैसे क्या होता है कि जैसे मैं अगर सपोज मुझे बनना My है father, एक्टर, तो नहीं ये इसकी फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, आपके फादर बैंक में हैं क्या? कोई बैंकर हो जिसके बारे में आप उनको नहीं सुनते हो? सर, एक्चुअली in front of my house there is a girl. She is elder from me and she joined the banking sector. So after seeing her I thought that I will also join the banking sector. ओके। अच्छा, हो जाए आप कभी गवर्नर कौन है आरबीआई का? I think it's Raghuram Rajan. शायद वो चेंज हो गए सर, एक्चुअली आई डोंट गो थ्रू द करंट न्यूज। अच्छा, तो ये रघुराम राजन की अभी एक बुक आई है, आप बता सकते हैं क्या नाम है उस बुक का? I don't recall it right now, sir. But I know the answer, but I don't recall it right. ओके ओके। अच्छा, एक बात तो ये आपकी बैंकिंग का मर्जर हो रहा है आज के डेट में, तो क्या ये सही है या गलत है आपके अकॉर्डिंग? Sir,
as every coin has two faces, it has also its benefits and demerits both. बताइए कुछ बेनिफिट्स बताइए, कुछ डिमेरिट बताइए। Sir, benefits if we see, then it reduces the cost of operation. Profit margin will be more. Management will be good. And if we see its demerits, then sometimes with the merger of the bank, people usually don't believe in some other banks. They don't think maybe it's good or not. There is a cultural gap. It will take time to fill it. This is the most I think demerits of merger. अच्छा, प्राइवेटेशन अब बैंक के क्या सही है कि गलत है? जैसे गवर्नमेंट बात करे रिफॉर्म्स लाने के लिए और प्राइवेटाइज करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री को, तो आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? प्राइवेटाइज होना चाहिए बैंक को? Sir, if we see, banks are generally public oriented because banks are made for public and private sector are profit oriented. So if we do privatize, then it is good to some extent. But the main objective of bank will fall because private sector will not consider government schemes, take it seriously like Prime Minister Jan Dhan Yojana or Suraksha Bima Yojana. So I think public sector banks are good. Okay, that is a demerit you are telling. And yes, sir. Okay. अच्छा, what is monetary policy? अंजलि, क्या है monetary policy? Sir, monetary policy is a committee which regulate the policy rate of the bank or the financial institution. ये किसके द्वारा लाया जाता है? कौन ये क्या कहते हैं, ये किसके द्वारा लाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी? क्या ये फिजिकल पॉलिसी और Government मॉनेटरी of India पॉलिसी के सेम द्वारा, है? sir. अच्छा, और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? Sorry, policy I don't know. ओके, तो शेयर मार्केट आप इंटरेस्ट रखती हैं? शेयर मार्केट क्या होता है? सुनती हैं कभी शेयर मार्केट के बारे में? आपने बोला ना कि बिजनेस में आप अपने भाई को हाथ बटाती हाँ, हैं, सर. हेल्प करती हैं, तो क्या है मतलब बिजनेस में शेयर मार्केट क्या होता है? Sir, I think trading of stocks and share in the electronic form, that is the share market. तो इसमें तो दो टर्म होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। दोनों में आप डेफिनेशन एग्जांपल के साथ मुझे बता सकती हैं? Sir, I don't know about primary and secondary market. कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बजट अभी आया है, तो बजट में कुछ आपको क्या लगा? कुछ 2-3 इनिशिएटिव बता सकती हैं क्या नया है इस बजट में? Yes, sir. Budget mainly consists of 4 pillars. Like they will focus more on women, poor people, youth, and farmers. One thing, this second one is that the TDS generally वो इनकम टैक्स वाले जो हमारे पैसे होते हैं उनकी डेज को घटाकर 9 दिन कर दिया गया है। पहले वो 90 डेज था, 10 डेज कर दिया गया है। दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड वन इज दैट गवर्नमेंट ने जो एलोकेट किया है बजट, तो इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दे विल फोकस मोर। उन्होंने उनके लिए फंड जो एलोकेट किए वो ज्यादा किए हैं, that is 11.11 lakh crore. And GDP growth is revised at 7.7%. ओके, तो बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 and 1980. 1969 में कितने बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था? I think 10 banks, sir. I think so. Maybe I am wrong, sir. ओके, और 1980 में? 7 banks. ओके, 7 बैंक। ओके, अच्छा, अभी आप इलेक्शन आने वाला है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर नया गवर्नमेंट जो भी बनता है और पॉलिटिकल पार्टी जैसे लेकर आती हैं मैनिफेस्टो, तो क्या आप एज ए यूथ क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं गवर्नमेंट से? क्या पॉलिटिकल पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करें? किस टाइप का मैनिफेस्टो उन लोगों का होना चाहिए? उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए? I think, sir, they will, if any political party will come, it will more focus on youth, as our interim budget has also focused on it. It will, I think, carry policy for digital banking currency, which is more popular nowadays. It also focus more on e-commerce and e-platform like fintech technology. Maybe more possibilities that they will focus more on capital expenditure also. ओके, Like they will construct more dams or more roads, highways. अच्छा, अभी रिसेंटली न्यूज में था इलेक्ट्रल I बॉन्ड। think so. आपको पता है क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड? Yes, sir. Electoral bond is issued for the election by the Election Commission of India for the funding of elections. इससे बैंक से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है इसका बैंक से? I don't know about this. गेस कर सकती हैं आप कौन सा बैंक इसको रेगुलेट करता है? कोई आइडिया है इसके बारे में? I think, sir,
May I guess sir? हाँ गेस करिए। SBI? ओके, अब सही है, एसबीआई है। अच्छा, एसबीआई कब नेशनलाइज हुआ? 1945. ओके, कितने टोटल नेशनलाइज बैंक है इंडिया में अभी? Sir, nationalized or public sector banks? पब्लिक सेक्टर बैंक ही बताइए। 12 public sector banks. ओके, नेशनलाइज बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई डिफरेंस होता है? I don't think so, sir. There is any difference between them. ओके, देन आपने बताया ना नेशनलाइजेशन का भी डिफिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस आपको वो नहीं लगता है कि गवर्नमेंट बैंक और दोनों सेम है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का कितना परसेंट शेयर है अभी? गवर्नमेंट का शेयर 51% सर। और एसबीआई में? सर इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, तो होल शेयर इज गवर्नमेंट ओनली। ओके, अच्छा, अभी एचडीएफसी का शेयर आपने देखा होगा काफी नीचे डाउन होगा, न्यूज में था एचडीएफसी बैंक, क्या कारण था उसका? कोई कारण था इस कारण उसका शेयर एकदम क्रैश हो गया था? कोई कारण है उसका? सर आई डोंट नो अबाउट दिस न्यूज, आई हैव टू गो थ्रू इट। ओके, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइए कि आप सपोज आपका सिलेक्शन होता है और बैंक ज्वाइन करती हैं आप, तो अपने आप को आफ्टर 25-30 ईयर्स कहाँ देखती हैं? सर एज बैंक मीन्स प्रमोट मिलेगा तो मैं ऑफ कोर्स आई विल सी माई सेल्फ एज एन असिस्टेंट मैनेजर और द हेड मैनेजर ऑफ द बैंक ब्रांच, एंड आई विल वर्क जो मैं कर सकती हूँ बैंक के लिए, मैं पूरा अपना कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ। तो अंजलि, आपका इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है और मैं आपको कुछ फीडबैक देना चाहूंगा, ठीक है? यस, थैंक यू सर। कैसा हुआ आपके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू? सर मॉक इंटरव्यू कैसा हुआ आपके अकॉर्डिंग? इट इज वेरी बैड, इट इज वेरी बैड, इट इज देखिए, वेरी बैड, आई होप। आपको मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, ठीक है? आप नोट डाउन बल्कि कर लीजिए, ठीक है? सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, चेहरे पे, बॉडी पे एकदम जो है ना कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। जो भी बोलिए स्पेसिफिक बोलना है। यस सर। कोशिश करिए कि आपको जो पूछा जाए वही बोले, उसके आसपास नहीं जाना है। और जैसे आपको मैंने बताया, बोला, पूछा कि आपकी पर्सनालिटी कौन है, कौन इंस्पायर करता है, तो बताइए कि कोई ऐसा पर्सनालिटी, कोई बड़ा पर्सनालिटी का नाम ले, जैसे अरुंधति रॉय जो एसबीआई के सीएमडी थी, ठीक है? कोई विमेन पर्सनालिटी आप रोल मॉडल उनको बनाइए, उनके बारे में बताइए, क्योंकि वो भी एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर ज्वाइन की थी बैंक में, एसबीआई में, और उन्हें सीएमडी तक पहुंची। जैसे मैंने पूछा आपसे कि आप अपने आप को 25-30 साल बाद कहाँ देखती हैं बैंक में, आप बोलेंगे कि हेड, ब्रांच हेड वगैरह नहीं, आप बोले कि मैं सीएमडी बनूंगी। तो ये दिखता है कॉन्फिडेंस, आपका बड़ा ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम शुड बी बिग, हाँ, बिगर देन इवन व्हाट यू कैन थिंक। तो आपको बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है? ये पॉजिटिवनेस एक होना चाहिए, हर जवाब में कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस झलकना चाहिए, ठीक है? और हाथ वगैरह ऐसे अगर नहीं करना है, और जैसे आपको अगर नहीं आता है तो सिंपल बोलिए कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, या फिर जो है मुझे अभी सर याद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है। सिंपल लैंग्वेज में आप बोलिए, और कोशिश करिए इंग्लिश में नहीं बोले। मेरे ख्याल से आपको बाइलिंगुअल यूज करना चाहिए और हिंदी यूज करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप टर्म जो है वह इंग्लिश का यूज कर सकती हैं, और कोशिश करें कि हिंदी में ही बोले मेरे ख्याल से, ठीक है? और ज्यादा फ्लुएंट अगर नहीं है तो आप अपना, हाँ, टर्म जो भी आप बोल सकते हैं, जैसे सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, तो उसमें क्या है, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन, ठीक है? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करें मिक्स, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका एकदम खराब हो जा रहा है, कहीं आप बोल नहीं पा रही हैं, कहीं ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रहा है, कहीं ऊपर नीचे देख रही हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे वर्क करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैंने पूछा भारत रत्न किन को मिला है, तो आपने बता नहीं पाए, क्योंकि अभी बिहार से आप बिलोंग कर रही हैं, और बिहार के कर्पूरी ठाकुर को ये मिला है भारत रत्न, जो कि बिहार के वो 11th नंबर के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 2 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक जो है वो 1970 से 71 तक, और दूसरा जो है 77 से 79 तक वो एज ए चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो डिप्टी सीएम भी हो रहे हैं, ठीक है? बिहार को दूसरे डिप्टी सीएम थे। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उनको जन नायक कहा जाता है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज में था, और काफी ये डिबेट, मतलब काफी चर्चा का बना हुआ था विषय, ठीक है? पॉलिटिकल जो भी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था, इंडियन को मिलता है या सिर्फ फॉरेनर्स को भी मिल सकता है, ये भी आप देख लीजिएगा किसको मिलता है, सिर्फ फॉरेनर्स को मिल सकता है ये? यस सर। कोई एक नाम बता सकते हैं कोई फॉरेनर्स जिनको मिला हो? आई डोंट रिकॉल इट राइट नाउ सर। एक्चुअली मैं ये सारे क्वेश्चन जितने आप
ने पूछे हैं, मैं सब पढ़ के आई थी, बट आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई नर्वसनेस आई टोटली फॉरगॉट ऑल दिस। मींस ऐसा नहीं कोई तब क्वेश्चन नहीं मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लाइक कुछ दिन बेस्ड सेफ। तो देखिए अभी देखिए ये है अभी वर्चुअल इंटरव्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेशर पर कम होता है। अगर आप जब फिजिकल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे ज्यादा, क्योंकि 4 लोग बैठे रहेंगे, 4 लोग देखेंगे, ठीक है, चारों तरफ से आपको डील करना पड़ेगा, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये आपका नर्वसनेस ना थोड़ा खत्म करना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ठीक है। और आईना के सामने भी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, श्योर। बोलने का, इंटरेक्ट करने का, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखना है और कम बोलना है, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन श्योर बोलिए, सर। खत्म करिए बात को, स्पेसिफिक रखिए। और करंट अफेयर्स पढ़िए। आपने थोड़ा सा जो बैंकिंग अवेयरनेस का टर्म आपने डिफाइन अच्छे से नहीं किया है। जैसे आपने नेशनलाइजेशन का डेफिनेशन सही नहीं दिया है। मैंने पूछा नेशनलाइज कब हुआ, 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था और 1980 में 6 बैंक का, उसका भी आपने गलत जवाब दिया है। यूनिकॉर्न के बारे में मैंने पूछा, यूनिकॉर्न जो आपने बोला कितना होता है वैल्यू, तो आपने बोले 2 करोड़, और 2 करोड़ नहीं होता है, एक्चुअली $1 बिलियन होता है, जो कि इंडियन रुपीज में 8,000 करोड़ का होता है, ठीक है। तो आपको नहीं पता है तो सिंपल आप बता दिए कि सर मुझे नहीं पता है इसके बारे में, सिंपल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपकी ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये आपका रिटर्न आप ऑलरेडी आप क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो आपका ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट थोड़े ना है, ठीक है। और फैक्ट जितना ज्यादा पढ़ सके, क्योंकि अभी टाइम है, बहुत टाइम है अभी, ठीक है, अभी कम से कम लगभग 20 दिन का टाइम है, तो बहुत टाइम है अभी प्रिपेयर करने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। तो बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है, बहुत ही एकदम, अभी जिस लेवल पे है आप नेक्स्ट लेवल पे रह सकती हैं नेक्स्ट 20 डेज में, ठीक है। क्योंकि लास्ट से प्रोबेबली फैब लास्ट से ये शुरू होने वाला है श्योर। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, तो बहुत टाइम है, पूरा मेहनत करिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है। और इसको में आप सोचिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा बैंक का ये सर, ये लोगो सर। वगैरह जो है वह सब ध्यान रखना है आपको। जैसे एसबीआई के बारे में मैंने पूछा, एसबीआई जो है में 57% जो है शेयर है गवर्नमेंट का। आपने बोले कि गवर्नमेंट है तो पूरा शेयर गवर्नमेंट का ही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी कंसेप्ट है यस। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। बजट यस सर, में, यस। हाँ, बजट के बारे में आपने बताया, वो सही है। और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के बारे में आप नहीं बता पाए, टोटली कंफ्यूज थी, ठीक है। और तो ये सारी चीजें जो हैं वह थोड़ा सा यस सर। अगर मैं समराइज करूं आपको, तो आप जो है बैंकिंग अवेयरनेस ये आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान रखना है, जो भी करंट अफेयर चल रहा है अभी से नीचे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, आप फॉलो करते होंगे, आरकेएस जो एकेडमी है हमारा, उस पर मैं रोज न्यूज डालता हूँ, तो उससे आपका फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, उसको आप देख लिया करिए, 10 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है, वो आप देख लिया करिए, तो आपका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिक आपका क्या श्योर चल रहा है श्योर सर। आपको पता चलेगा, ठीक है। और ऐसे भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, और जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन भी आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वो भी पढ़कर आएंगे आपको, वहां से पूछ देंगे वो क्वेश्चन, तो वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंटली आप जवाब दीजिए हट कुछ का, ठीक है। और आपको हिंदी में बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी में बोलिए इंग्लिश में बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको हेजिटेट नहीं होना है कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं, हिंदी में बोलिए, बस लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन का है। तो आप वो खुद आपसे हिंदी में पूछना, जब तो हिंदी में जवाब देंगे तो खुद आपसे अब हिंदी में सवाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में जवाब दीजिए उसको। ऐसे भी आपका इंटरव्यू प्रोबेबली पटना में होगा मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी करें, जो भी मैं बताया हूँ आपको, ठीक है। और आंख को बंद नहीं करना, जब आप नहीं आता है तो बोलती है, मतलब ऐसे से आंख बंद करते लगती है, तो वो, हाँ, वो सब आदत नहीं होना चाहिए कि आंख बंद कर रही है, नहीं आ रहा है तो और तो वो सब नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ एकदम जवाब दीजिए कि नहीं मुझे नहीं पता है, आई सर मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, मुझे नहीं, अब मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। परमिशन ले लीजिए कि सर मुझे इतना पता है, क्या मैं बोल सकती हूँ। तो ये सब चीजें, एक प्रोटोकॉल होता है, एक एटिकेट्स होते हैं इंटरव्यू का, तो वो थोड़ा सा आप उसको फॉलो करें, ठीक है। बाकी इतना आप ध्यान रखें, बाकी बेस्ट ऑफ लक अंजलि, ठीक है।